roles and responsibilities a fresher can expect to have once he is joining the company for the first time? So this is very much clear that the students should look for the opportunities instead of the higher package in the beginning of their career, and afterwards the success will automatically come to them, right? So let me also give an clarity that in terms of जब आप बात करते हैं कि उनको पैकेज एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, let me clarify, the industry is giving a very handsome package even in the beginning also. So if you look at the other industries in service sector, maybe banking, or you can look at in manufacturing, even agri sector, initial salaries are much better. So if, because your BSc AG qualification itself is a equivalent to an engineering. It's a 4-year course, right? A very specialized course, and so the package has been already decided by the industry at the entry level by every company. They do not want, so that the objective of any company is having a good people and not to lose them. So at the initial stage, you leave it to them to decide on what kind of compensation range they are going to offer you. At the same time, now it's up to an individual how they would progress, because now it's not a government system like there should be a slab so that every year you'll get a very fixed increment. So it totally depends upon what you contribute, Your, right? correct, So correct. even the compensation is very much incentivized in agri industry, and the incentives are very attractive. So more you deliver, more you get, and the differentiator would be only your skills and abilities, nothing else. Your Correct. presentability, your collaboration, or your mere articulation, your technical know-how, your communication style, all this will make a difference. तो ये जो स्टूडेंट्स के बीच में मिथ है कि एग्रीकल्चर वर्ड सामने आते ही एक सामने एक जहन में एक ऐसा पिक्चर उभर करके आता है जहाँ पे एक गांव है, एक झोपड़ी बनी हुई है और लहराते हुए खेत हैं, लेकिन उस झोपड़ी से के बियॉन्ड स्टूडेंट नहीं सोच पाता है। तो अब हमें स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया होगा, हमारे स्टूडेंट्स को आपके इस आंसर से, कि जैसे वो एक एमएनसी में अपने करियर को एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे वो एक एमएनसी में अपने पैकेज को एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह अब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी इक्विवेलेंट टू द अदर सेक्टर्स, इक्विवेलेंट टू द एमएनसीज, उनको वही करियर अपॉर्चुनिटीज और सैलरी स्लैब देने वाला है, राइट? The only difference I can say, even better than that, I would say, the ओके, only difference is it's not a white collar job. आपको टाई लगा के ऑफिस में नहीं बैठना है, आपको फील्ड में जाना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है, आपको सीखना है। एंड मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूँ कि इससे अच्छा जॉब कोई नहीं है, क्योंकि अगर ऑफिस में आप 12 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, यू गॉट फटीग, यू गॉट टायर्ड, एंड यू गॉट वेरी मोनोटोनस वर्क ऑफ डूइंग। आपने उसी जो आपका वर्क प्रोफाइल आपने दिया है उसी पे आप काम कर रहे हैं। वेयर एल इन एग्रीकल्चर साइड इट्स वेरी वर्सेटाइल। Every customer you meet, every village you visit have something different to offer you. Yeah. So and you get a refreshment. You got totally refreshment in terms of your energy levels. So it's a job which gives you the people who are willing to interact and contribute in a larger space. I think this is one of the most attractive areas. Even I had worked in non-agri sector as well, and that too in a almost top of the companies of India, in starting with Tata's to Reliance to Siemens to kind of stuff. But at the same time, when I look at the entire career span of around 32 years of mine, major part goes into agri-related companies, and I am very proud to say that I've served this sector and uh, still continuing and still contributing. And if I need to compare between the typical top MNC in IT industry or a manufacturing engineering company and an agri job, I would say I will give 100% weightage to agri. wonderful, sir. Great to know this, that students have the sky is the limit for the students who are looking for their career in agriculture sector. और इसी वर्सिटैलिटी की जो आपने बात की है इस एग्रीकल्चर सेक्टर के करियर में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स का
करियर ग्राफ क्या रहता है यहाँ पे, और उनकी जब वो पहली बार अपने ग्रेजुएशन के बाद में कंपनीज को ज्वाइन करते हैं तो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? See, there are two kind of roles in agri sector. One is in a corporate office, typically into marketing or supply chain, or maybe data analytics. Second is on the ground. So on the ground is generally there are two activities which happens. एक तो लोग डायरेक्टली सेल्स में जा सकते हैं या फिर मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं, जिसको कि हमें बोला जाता है डिमांड जनरेशन एक्टिविटीज़, जहाँ पर आपके कैंपेन प्लानिंग, कैंपेन्स, फार्मर मीटिंग्स, डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग्स, काइंड ऑफ स्टफ. इट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आजकल बहुत चूजी हैं. वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन विल नॉट पुट इनटू द रोल. They would see your interest as well as your passion into the area where you can develop yourself. If somebody has an interest on or very good into analytics, or he want to do some market research kind of thing, so their job would be more fitted into corporate uh, offices. The people who say no, we want to gain the good insight and we want to grow faster, have a better incentive, I want to earn bigger incentive in sales, they can join sales. The typical hierarchy goes at the starting level, they go for a field development officers in a company, which they can 1 या 2 साल का उनका डिपेंड करता है कि वो कितने फास्ट सीखते हैं, कितनी उनकी अपनी नॉलेज अपने क्रॉप के बारे में बढ़ाते हैं, अपने ज्योग्राफी के बारे में बढ़ाते हैं अपने, और उसके बेसिस पे अपना जैसे सीजन चलते हैं रबी एंड खरीफ, तो दोनों की क्रॉप डिफरेंसेस हैं, क्रॉप के पैटर्न डिफरेंसेस हैं, उनके डिसीजेज डिफरेंसेस हैं, प्रोडक्ट डिफरेंसेस हैं. तो वो नॉलेज गेन करने के बाद में दे कैन गो फॉर एज ए मैनेजमेंट ऑफ ए टेरिटरी, जो टिपिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है उनको ए सेल्स ऑफिसर और ए सेल्स एग्जीक्यूटिव रोल, और वहाँ से बट उनको इंसेंटिव भी उसी हिसाब से मिलते हैं. एक बेसिक आपको डिफरेंस बताता हूँ इंसेंटिव में, जो लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा. Let us take an example of an engineer who passed out and who joined an IT company. This is a top IT company, which can be in one of the top 10 IT company you can consider in India, right? The starting package of those people and the starting package of the BSc Agri graduate after 2 years when they get into sales stream would be almost similar. Number one. Number two, the facilities and the variable is 5 to 8 times higher than the IT guys. IT guys typically get 15 to 20% of their fixed pay as a variable part, whereas in agri sector it goes from 55 to 90%. Great. So it's a huge difference between both the sectors in terms of earning potential, I would say. तो पोटेंशियल वाइज जितनी आपकी सैलरी आपको मिलती है उतना ही आपका इंसेंटिव भी होता है, बट उसको अर्न करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें टारगेट्स हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. देयर आर एट टाइम्स देयर आर थिंग्स इन नॉट इन योर कंट्रोल, लाइक नेचुरल कैलामिटीज, सीजन फेवर नहीं हुआ, या प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, चैलेंजेस होते हैं. बट दैट डजंट स्टॉप आवर इंडस्ट्री. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग एंड दे आर अर्निंग, दे आर वर्किंग फ्रॉम एजेस, and with the help of as I said, the technology, you can do certain forecasting, you can do those things even much better way today, जैसा पहले ट्रेडिशनली करते थे. लेकिन मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको इनिशियल टाइम में तो आपको थोड़ा सा अपने ग्राउंड को जमाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. आप एक एक बेबी स्टेप करके ही आप सीढ़ियों पे चढ़ने के लायक बनेंगे. आप डायरेक्टली जंप करके 3 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते. बिल्कुल बिल्कुल. सर, तो जिन क्वालिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे शायद मेरे स्टूडेंट्स आपसे ये पूछना चाहेंगे कि स्टूडेंट का इन करियर अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से होकर के जाता है? व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन
to build up these skills and qualities into the student so that they can grab such opportunities in the corporate world? What are those institutes who are working and what skills they develop in our students? So if I look at today, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अभी भी उसमें इवोल्यूशन हो रहा है, और ट्रेडिशनली मोर फोकस वाज ऑन एकेडमिक्स की सब्जेक्ट नॉलेज दे दी जाए, और वो भी सब्जेक्ट जो डिकेड्स पहले डिज़ाइन हुए थे उसमें मॉडिफिकेशंस काफ़ी टाइम से नहीं हुए हैं। जो नया उतार चढ़ाव आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, उसके हिसाब से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अभी प्रिपेयर नहीं हैं, और वो उनका बेसिक पर्पस हो जाता है कि एक उनको एक डिग्री प्रोवाइड कर दी जाए, उसके बाद में स्टूडेंट्स डिग्री तो मिली है देख ही लेंगे। लेकिन आई वुड से कि इंस्टीट्यूशंस का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, और अभी कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आजकल फोकस करते हैं कि वो अपना दायरा जो है इंडस्ट्री के साथ में बढ़ा रहे हैं। दे इनवाइट द इंडस्ट्रीज ऑन वेरियस फोरम्स, दे डू कैंपस एक्टिविटीज़, दे प्रोवाइड देम द इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, they also help them to go on various projects, special projects for a shorter duration. तो इस टाइप के देखो, जब तक आपको स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलने के दो तरीके, या तो आप कैंपस के थ्रू जाइए, या जो इंस्टीट्यूट्स आपको इस टाइप के इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं वो है। और मैंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहले भी बताया था कि नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द मेजर पिलर, नॉट ओनली फॉर योर नॉलेज बिल्डिंग, इवन फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटीज़। आज भी हमारे कंट्री में वेदर इट इज़ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एग्री और नॉन एग्री, सब जगह नेटवर्किंग प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ शेयरिंग सर्टेन ओपन अपॉर्चुनिटीज़। कुछ कंपनी में कई बार क्या है, अपॉर्चुनिटी पब्लिश नहीं करी जाती है, लेकिन वो अवेलेबल रहती है उनके एम्प्लॉयज़ के पास। इफ़ योर नेटवर्क इज़ देयर, पॉसिबली यू हैव मोर एक्सेस देन टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है सर, तो ये आपने मुझे बताया कि किस तरीके से एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉरपोरेट हाउसेस को और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इन हाउस बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए और एक्सपोजर लेने के लिए अगर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, उनको लाइजनिंग में मदद करता है, नेटवर्किंग में मदद करता है, तो वो उन्हें ज़्यादा अच्छे से अपने करियर गोल को अचीव करने में मदद कर पाएगा। Absolutely. So you can relate with an example of sports. स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जो हमारे हिंदुस्तान में देखेंगे तो आप गांव से लेकर शहरों तक सब जगह है, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो स्टेट लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है या उनको वो विजिबिलिटी नहीं है। तो विजिबिलिटी होने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक इकोसिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, और मैं समझता हूँ कि हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनकी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जिन स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत से अपने एजुकेशन में फोकस किया है, उनको वो विजिबिलिटी प्रोवाइड करवाएं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग और इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री प्रोवाइड कराएं एट ए इंडिविजुअल लेवल। जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत सारी फोरम्स हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं, तो स्टूडेंट शुड गो देयर। जो अभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कृषि मेला लगते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती हैं, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, वो लोग भी अरेंज कराते हैं। विजिट देयर, अंडरस्टैंड, टेक्निकल एक्सपोज होती हैं, एग्री एक्सपोज होती हैं, एंड इफ़ दे हैव स्लाइटली डीप पॉकेट, इफ़ दे कैन विजिट आउटसाइड इंडिया, तो बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत सब्सिडाइज होते हैं ये। So the advanced countries which are having a better equipped knowledge and the technicalities, student even can try to visit those countries like Israel, or they can visit China, or they can visit other countries जहाँ पर आपकी different agri practices हैं, so their knowledge would be definitely better than the other people. Certainly.